my dear students, how are you? I hope you all are fit and fine. We learnt our exercise number 1 in our previous videos. हमने हमारी previous videos में exercise first complete कर ली, सीख ली. Okay, this is your revision exercise. Sorry, this video is for class first and this is your revision exercise. In this exercise we revise all the methods we learnt in this exercise. Okay, इस exercise में जितने methods सीखे ना उनका हम क्या करेंगे, quick revision लेंगे. तो let's start. First of all we learnt numbers name. सबसे पहले हमने क्या सीखा था बच्चों? Numbers names. ONE1 TWO2 THREE3 FOUR4 FIVE5 SIX6 SEVEN7 EIGST8 NINE9 TEN10. First of all we learned numbers name. Is that clear? Okay. Second we learned count and write. Count and write. It means you have some pictures. First of all you count the pictures and then write the name, number name and number of the pictures. Suppose there is some pictures of stars. First of all, count the stars. How many stars there are? 1, 2, 3, 4, 5. How many stars there are? There are 5 stars. 5. Number is 5 and the number name is FIVE5. Is that clear? Okay. Count the fish. There are 1, 2, 3. 3 fishes. How many fishes? 3. Number is 3 and the number name is THREE3. This is the concept count and write. Is that clear? समझ आ गया आपको ये count? इसमें आपको सबसे पहले पिक्चर्स को काउंट करना है. काउंट मीन्स उनको गिनना है. देन उसका नंबर लिखना है कि कितने हैं. देन उस नंबर का नंबर नेम भी लिखना है. Is that clear? Okay. Third method is concept of zero. Third method we have learned concept of zero. Concept of zero, it means you have something. You have something. If you give all the things to another one, then you have nothing. Okay. क्लियर वे में बोलेंगे कि अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो आपने सारी की सारी किसी और को दे दी, आपके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा ना. तो क्या बचेगा? कुछ नहीं मतलब ज़ीरो. कुछ नहीं मतलब ज़ीरो. नथिंग. ज़ीरो. नील होता है ना, तो ज़ीरो. सपोज दिस इज अ प्लेट. Here are in this plate how many apples? 3. 3 apples in plate. 3 apples in plate. If 3 are taken. If 3 are taken. मतलब 3 एप्पल आपके पास थे, 3 एप्पल आपके पास थे और 3 के 3 ले लिए गए. टेकन मीन्स ले लिए. तो अब कितने एप्पल्स बचेंगे प्लेट में?
remaining apple 0, remaining apple 0. Apples now is 0. समझ आया कि आपके पास कोई चीज़ है, जैसे आप यू हैव सम फ्लावर्स, 4 फ्लावर्स यू हैव, आपके पास 4 फ्लावर्स है, ओके आपने वो 4 फ्लावर्स अपने फ्रेंड को दे दिए एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के लिए आपने अपने फ्रेंड को दे दिए. अब रिमेनिंग फ्लावर्स आपके पास कितने बचे? नील, 0. दैट मीन्स अगर एक नंबर में से सेम नंबर हम किसी को दे दें या सेम नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, कम कर दें, तो आंसर क्या आता है? 0. आंसर इज 0. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 0. अंडरस्टूड? ओके. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, फोर्थ कॉन्सेप्ट हमने सीखा था बिगर एंड स्मॉलर. बिगर एंड smaller. You have a picture of star. Okay, you have a picture of stars. Star is than that star. Okay, this star is bigger or smaller? ये स्टार इस स्टार से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है ना, तो क्या लिखेंगे? दिस स्टार इज बिगर, BIGGER, बिगर. दिस स्टार इज बिगर देन दैट स्टार. इज दैट क्लियर? नाउ दिस बॉल इज देन that ball. Sorry, this ball is bigger or smaller than that ball? बड़ी है छोटी है? छोटी है ना, तो क्या आएगा? this ball is smaller than that ball. Is that clear? This is the method biggest and smaller, biggest and smaller. Next method we learned circle on biggest number and square on smallest number. Is that clear? Circle on biggest number and स्क्वायर ऑन स्मॉलेस्ट नंबर. बिगेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था. सपोज यू हैव 3 नंबर्स, फाइंड आउट द बिगेस्ट नंबर. बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 9 इज द बिगेस्ट नंबर. सर्किल ऑन बिगेस्ट नंबर, देन स्क्वायर ऑन स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर. 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, पुट स्क्वायर ऑन इट. इज दैट क्लियर? दिस इज द मेथड टू बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने का मेथड था. हमें एक क्वेश्चन में सर्किल करना है बिगेस्ट नंबर पे एंड देन सेकंड क्वेश्चन में हमें सर्किल करना है स्मॉलेस्ट नंबर पे. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ 6th method we have learned was less and more. Less and more. Okay, 6th method we have learned less and more. Less मतलब होता है कम, more मतलब होता है ज़्यादा. 4 is less than 6 or more than 6. 4 is less than 6 or more than 6. 4 is less than 6. 4 is less than 6. 4 कम है ना 6 से. नेक्स्ट 9 इज लेस देन 7 और मोर देन 7. 9 छोटा है, कम है या ज़्यादा है? 9 इज मोर देन 7. 9 is more than 7. This is the method of less and more.
लेस एंड मोर मतलब कम और ज़्यादा हमें आइडेंटिफाई करना है. ओके, नेक्स्ट सेवंथ मेथड इज इक्वल और इक्वल नॉट. इक्वल और इक्वल नॉट. इक्वल मीन्स होता है बराबर, इक्वल नॉट मीन्स बराबर नहीं. इक्वल है और बराबर नहीं है, मतलब बराबर है और बराबर नहीं है, आपको बताना है. 4 and 4. 4 इज इक्वल देन 4. 4 की इक्वल है या नहीं है? इक्वल है ना, देन पुट इक्वल्स टू साइन. 4 इज इक्वल्स टू 4. नेक्स्ट 6 इज इक्वल्स टू 7 और नॉट. 6 इज इक्वल्स टू 7 और नॉट. 6 और 7 इक्वल है क्या? देखो बेटा, 6 और 7 इक्वल है? नो, 6 इज नॉट इक्वल टू 7. 6 is not equal to 7. This is the method of equal or equal to we have learnt. Method number 8 we have learnt is that before and after. Before and after. बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में. बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में. व्हाट कम्स आफ्टर 4? व्हाट कम्स आफ्टर 4? 4 के बाद क्या आता है? 5. व्हाट कम्स आफ्टर 6? 6 के बाद क्या आता है? 7. इज दैट क्लियर? ओके. व्हाट कम्स बिफोर 9? 9 से पहले 9, 8. बैक काउंटिंग बोल के फाइंड आउट करेंगे. 9, 8. What comes before 6? 5. 9, 8, 7, 6, 5. Okay? ठीक है ना? ये मेथड था बिफोर एंड आफ्टर. नाइन्थ मेथड इज बिटवीन. What comes in between? बिटवीन मीन्स होता है बीच में. बीच में कौन सा नंबर आएगा? 4, 6. 4 and 6. What comes between 4 and 6? 5. What comes between 4 and 6? 5. Okay. What comes between 8 and 1, 0, 10? What comes between 8 and 10? 9. What comes between 8 and 10? 9. This is the method of what comes in between. The last method we have learned is increasing and decreasing order. Last method we have learned was increasing and decreasing order. Increasing मतलब होता है बेटा बढ़ता हुआ, और decreasing मतलब होता है कम होता हुआ. ठीक है? Suppose you have a number 4, 1, 3, 9. ओके, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इसे. सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे. सबसे छोटा नंबर कौन सा है? देखो, 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 1. ओके, देन सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर 3, देन 4, एंड द लास्ट बिगेस्ट नंबर इज 9. दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर. Okay, this is the increasing order. Okay, decreasing order. This is the number. This is the series you have given. Find out the biggest number in decreasing order. We start from biggest number. ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं. 9 इज द बिगेस्ट नंबर. सेकेंड बिगेस्ट नंबर 7, 6, एंड लास्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 4. दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, these methods we have already learnt in our previous video. This is your revision exercise. In this exercise we recall all the methods. I hope now you will understand, now you
understand very well about these concepts. So complete your work. आपकी बुक में जो वर्क है वो आपको कंप्लीट करना है. I will provide you worksheet which you will complete in your notebook. Till then, stay safe, stay home.